بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ ایک بڑا سسٹمیٹک اور بڑا ویل پلان ایک نظام ہے۔ جس انسان سے اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جس انسان سے کوئی منصوبہ کوئی مکمل کروانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے حالات ویسے بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ماحول اس قسم کا بنا دیتا ہے، اس کے یار دوست اسی قسم کے مل جاتے ہیں، اس کا اصلاح اور مشورہ دینے والا ساتھی دوست وہ بھی ویسے مل جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو جس منزل کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں وہ بندہ خود بخود اس منزل کی طرف چلتا جاتا ہے، اور جو بنانا چاہتے ہیں بندہ ویسا ہی اللہ کے منصوبے کے مطابق بنتا چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ماحول کیا تھا؟ ایک ایسی امراء کی غنڈہ گردی کا ایک دور تھا، ایک جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ایک قانون ایک رائج تھا، غریب کی بات سننے والا کوئی نہیں تھا، یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، ایک غریب بچی پیدا ہونے والی جس کو کہ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے سرداروں کی حکومت تھی، طاقتور لوگوں کا قانون چلتا تھا، اور دنیا میں کوئی امن نہیں تھا، کوئی انصاف نہیں تھا، اور کسی کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چونکہ ایک مشن دے کے آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام رستوں میں سے یہ دکھا کے کہ کس طریقے سے ایک یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے، کیسی اس کی تکلیفات ہوتی ہیں، اللہ نے محمد الرسول اللہ کو یتیم پیدا کیا تاکہ وہ محسوس کر سکے یتیم کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس کی محرومیاں کیا ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس کی خواہشات جو ہوتی ہیں یہ اس کے سینے میں دبی دبی یہاں تک کہ قبرستان میں وہ دبا دی جاتی ہیں۔ ایک ایسی آواز مظلوم کی، ایک ایسے لاچار انسان اور پریشان حال انسان، ایک غریب انسان، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں۔ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبائی جو مالی حالات تھے، آپ جس گود میں پیدا ہوئے یہ ایک غربت کی گود تھی۔ آپ کو معلوم ہو جائے غربت کیا ہوتی ہے، غریب آدمی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں، دن کیسے گزرتے ہیں، اس کے احساسات کیسے ہوتے ہیں، اس کے جذبات کیسے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پیش کر کے دکھا دیے تاکہ میرا نبی محمد الرسول اللہ ان کو محسوس کر لے۔ آپ بڑے ہوئے، آپ پھر ملازمت آپ نے اختیار کی، آپ کو معلوم ہو گیا دنیا میں جو ملازم لوگ ہیں، جو لوگ کسی کے زیر دست ہوتے ہیں، ملازموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان سے اتنا انسانوں کی طاقت سے پڑھ کے ان سے کام لے کے پھر بھی مالک ان سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ یہ سارے حالات نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی کا ایک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको परेशानियों का जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सामना करवाया, इन तमाम परेशानियों का भी एक मकसद था, ताकि ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको महसूस हो जाए एक परेशान कुन हालात में एक इंसान की सोच क्या होती है, उसके ख्यालात क्या होते हैं और वो किस तरीके से जिंदगी गुजारता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूंकि कोई एक मिशन सा दुनिया में है, आज उस मिशन का इंशाअल्लाह ताला आधा हिस्सा बयान करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन अल्लाह ने आपको दिया था, वो मिशन ये था कि आप जो गरीब लोग हैं, इनके दुख को समझते हुए इनके लिए आसानियां पैदा करें। दुनिया में जो मिस्कीन लोग हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता, यतीम जिसकी कोई नहीं सुनता, उसके हालात को देखते हुए उन तमाम जज्बात का आपको अल्लाह तबारक व तआला ने तजर्बा करा दिया, ताकि उन यतीमों का कोई ख्याल रख सके। जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनी जाए, इस दुनिया में उनका भी कोई सुनने वाला हो। अल्लाह ने एक मिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे के भेजा था। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारे ये यतीमी के हालात, ये मिस्कीनी के हालात, ये गुर्बत के हालात और ये परेशान कुन मुलाजमत के हालात, सारे के सारे हालात देकर नबी अलैहिस्सलाम ने देखे और आपके दिल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जज्बा पैदा कर दिया और कि जिनकी कोई नहीं सुनने वाला होता, काश को उनकी भी सुनने वाला दुनिया में मौजूद। आज दुनिया में लोग ये बात कहते हैं, जश्न आमद रसूल, अल्लाह की कसम काश को दुनिया में इंसान उठे जो ये बात कहे, मिशन आमद रसूल के मोहम्मद रसूलुल्लाह की आमद का मिशन क्या था, इस मिशन का भी कोई नाम ले यार। आज इनको भी कोई खिलाए, वो यतीमों के सर के ऊपर हाथ रख के कहे हम मिशन आमद रसूल जो है ये उसकी तकमील करेंगे, हम यतीम जो हैं उनके सर पे हाथ रखेंगे, हम मस्कीनों की जो जरूरियात है उनको पूरा करेंगे, हम मजदूरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। ये मिशन आमद रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुआशरे के वो लोग जिनकी कोई नहीं सुनता, हम उनकी सुनेंगे। जिनकी जरूरियात उनके सीने में दबी रहती हैं, हम उनकी जरूरियात को पूरी करेंगे। काश कोई मिशन आमद रसूल का भी नाम ले। और अल्लाह ने यही मिशन मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया। आप महसूस करते थे यतीम क्या होता है, गरीब क्या होता है, एक मजदूर क्या होता है, परेशान कुन हालात क्या होते हैं, किन रातों में उसका क्या क्या हाल होता है, ये सारी चीजें नबी अलैहिस्सलाम महसूस करते। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम जब तकरीबन आप 20 साल के थे, तकरीबन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के थे, अरब के वो लोग जो यही जालिमाना रवैया गुलामों के साथ रखते थे, नौकरों खादिमों के साथ रखते थे, यतीमों और बच्चियों और औरतों के साथ रखते थे, और जिनकी कोई नहीं सुनता कमजोरों के साथ, आखिर उन्होंने महसूस कर लिया। उनमें से चंद लोग उठे, कहने लगे आओ अल्लाह के घर में बैठ के एक ऐसा हलफनामा तैयार करें। उस हलफनामे का नाम है हल्फुल फजूल। ये एक नेक आदमी चंद थे, चंद कबीलों के, वो बैठे और ये मक्के का नौजवान जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, ये भी जाके उनमें बैठा कि मैं भी इसका हमायती हूं कि कोई किसी का हक ना खाए, आओ हम मुआदा करें, आओ कोई किसी का जुल्म करके हक दबा ना सके, वो किसी के साथ ज्यादती ना कर सके, और जो ज्यादती करे उसको मक्का से निकाल दिया जाए। मैं मोहम्मद गरीबों का, मैं मोहम्मद उन परेशान कुन हालों जो लोग हैं, मैं उनका हामी हूं, मैं भी इस मुआदे के ऊपर मैं दस्तखत करता हूं। आपको महसूस था कि हालात क्या होते हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता फरियाद, उसके हालात क्या होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बस फिर ऐसे ही हालात में डलते चले गए, लोगों के काम आना शुरू हो गए। जिसका कोई काम करने वाला ना होता, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं तुम्हारा काम कर देता हूं।
جس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی. شادی کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی علیہ السلام 40 برس کے پورے ہو گئے تو آپ کو اللہ نے جب نبوت دی اور آپ غار حرا میں تھے, فرشتہ آیا, اقرا بسم ربک الذی خلق. اچانک وہ فرشتہ جبل نور کے اوپر ظاہر ہوا. سارا معاملہ سن کے نبی علیہ السلام جب گھر میں واپس آئے, آپ کو تو امید ہی نہیں تھی یہ معاملہ کیا ہے, یہ فرشتہ کیا ہوتا ہے, کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ان باتوں کا نبی علیہ السلام نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. قرآن مجید خود کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ایسے معصوم ایک انسان تھے, معاشرے کی گندگیوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے غار حرا میں آپ اکیلے ہی چلی جاتے تھے. دنیا کے ڈول دمال, ان کے ناچ, ان کے گانے, ان کی محفلیں اور ان کے مشاعروں سے نکل کے آپ تنہا ہو کے جو رہتے تھے کہ میں ان کو پسند نہیں, آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. اچانک ہم نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے آپ کو بتا دیا, ہم نے تو ایک خاص مشن کے تحت آپ کی تربیت اور آپ کا یہ ذہن بنایا ہے, ہم نے تو آپ سے ایک کام لینا ہے. اٹھیے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے, اب آپ نے یہ اور یہ اور یہ کام کرنا ہے. اچانک ہی آپ جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے, اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو پیار سے اپنے ہاتھ جب قریب کیا, اتنے طاقتور تھے جبرائیل علیہ السلام, اتنے جبرائیل علیہ السلام زور اور ذل قوت المتین, ایسی طاقتوں کے مالک تھے کہ پیار سے نبی علیہ السلام کو جب اپنے ساتھ لگایا اور کہا اے محمد, بے شک آپ واقعی دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے شاگرد نہیں, لیکن اللہ آپ کو پڑھاتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے ساتھ جب لایا, جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر جبرائیل علیہ السلام کے اچانک ہی پکڑ کے جب اپنے ساتھ لگایا, جبرائیل علیہ السلام نے بڑے پیار اور محبت سے آپ کو اپنے ساتھ لگایا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا جبرائیل ایسے لگا, مجھے لگایا میری جان ہی نکل چلی. انہوں نے بڑے پیار سے لگایا تھا نا. جبرائیل تو بہت زیادہ بڑے اللہ کے فرشتے, ایسے مجھے لگایا جیسے انہوں نے پیار سے لگایا تھا کہ نبی محمد آپ انسانوں کی صلاح کے لیے نبی بنائے گئے ہیں, پڑھے ہیں آپ گھر آ گئے اس سارے حالات کو دیکھ کے, یہ کون ہے, یہ کیا فرشتہ ہے, یہ کیا پروں والا ایک اچانک میرے سامنے ظاہر ہو گیا, اور کیا باتیں اس نے کہہ دی. آپ گھر میں آئے پریشان سے بڑے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. میں مجھے کمبل دو, کمبل اڑایا گیا, آپ کچھ دیر اس میں لیٹے رہے, پسینہ سے شرابور ہو گئے. کچھ دیر بعد ذرا طبیعت سنبھلی تو نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی کو حضرت خدیجہ کو کہا, اے خدیجہ مجھے لگتا ہے لقد خشیت علی نفسی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ الفاظ نقل کیے جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پڑھے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے خدیجہ مجھے تو اپنی جان کی پڑ گئی, یہ بن کیا بھائی, کہ کون تھا, کیسے ہوا, یہ معاملہ کیا ہے. لقد خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کی پڑ گئی, معاملہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہوگا, میں کیا, یہ اتنی ساری قوم ایک طرف, اکیلا محمد ایک طرف, میں کیا کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل اس وقت پھر سارا واقعہ سنایا اور حضرت خدیجہ نے اس وقت تسلی دی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واللہ کلا, خبردار اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لا یخزیک اللہ ابدا. اے میرے نبی محمد, اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھی, میرے خامن, پریشان نہ ہو. آپ جیسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا, کبھی کیوں خدیجہ کیا بات ہے, میں اس لیے انک لتصل الرحم,
आप तो वो बंदे हैं, आप तो लोगों के काम आने वाले बंदे हैं। जो लोगों के काम आने वाला हो, कभी अल्लाह ने उसको भी जलील किया दुनिया में। ऐ मेरे खामद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका लतसिलुर रहीमा, आप तो सिला रहमी का हुक्म देते हैं। तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मज़ूमा व तकरिज़ ज़ईफ़ा। ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मान तो फौरी तौर पे सबसे पहले हजरत खदीजा कहने लगी, मैं मानती हूं आप अल्लाह के नबी, वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। मैं शुरू से ही आपका मुशाहदा कर रही थी कि ये कोई खास इंसान है। आपको अल्लाह कभी जलील नहीं करेगा, कभी रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि मक्का में जिसका कोई कमाने वाला नहीं ना होता, ऐ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद अपनी कमाई करके उसके घर उसको दे आते। आपको अंदाजा बचपन से हो चुका था कि गुर्बत के हालात क्या है। आप तो गरीबों के काम आते हैं, जिनका कोई कमाने वाला नहीं होता, आप उनको कमाई जाके दे आती हैं, चलो तुम खा लो, कोई बात नहीं। और जिसका कोई बोझ नहीं, तहमिलुल कल, जिसका कोई बोझ नहीं उठाता, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं लाओ मैं तुम्हारे साथ लगे तुम्हारा बोझ उठा लेता। जब मक्का में को बाहर से आता है, जिस मेहमान को कोई अपने घर में लेके नहीं जाता, आप उसे कहते हैं आओ मेरे घर में आ जाओ, तुम मेहमान हो, तुम खा लो, मेरी खैर है, कोई बात नहीं। वतुइनु अला नवाई बिल हक, और कभी भी हक की बात करने का कोई मौका आता है तो ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके साथ होते हैं। आप परेशान ना हो, ये आपकी आदतें हैं। ये जो आदतें हजरत खदीजा ने नबी अलैहिस्सलाम की गनवाई हैं, अजीब बात देख लें, ये सारी वही आदतें हैं जो बचपन से नबी अलैहिस्सलाम आप देखा करते थे। घर में माहौल बाहर का कि यहाँ गरीब का सुनने वाला कोई नहीं, मिस्कीन का सुनने वाला कोई नहीं, एक कमजोर की बात सुनने वाला नहीं, आप ही उनके काम आते हैं, आप ऐसे आदमी हैं। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जब कुरान मजीद उतरा तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने 23 सूरतों में 23 कुरान मजीद की 5 मक्की सूरतें और उसके बाद मदीने की 18 सूरतों में अल्लाह तबारक व तआला ने यही बार बार बात की, ऐ मेरे नबी जिसका कोई काम नहीं करता आप उसका काम कर दिया करें, जिसको सब धक्के देते हैं ऐ मेरे नबी उसे सीने से लगा लिया करें, यतीम का ख्याल रखा करें, जिसकी कोई नहीं सुनता आप उसकी सुन लिया करें, ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ने शुरू से वज़्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یتیمی کا چونکہ مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، آپ سمجھتے ہیں یتیم کے جذبات کیا ہوتے ہیں، آپ یتیموں کا خیال رکھیں، کوئی نہیں رکھتا تو نہ رکھیں۔ سائل آئے جس کے پاس کچھ نہیں، آپ نے یہ دنیا میں دیکھا کہ آپ غریب تھے، اب آپ کے پاس کوئی سائل آتا ہے اس کو جھڑکنا، سختی نہیں کرنی، کوئی سوال کرنے والا آئے آپ خوش دلی سے اس کا سوال کا جواب دینا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ او انسانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ مال دولت جمع کر کر کے تم کسی یتیم تمہارے پاس آتا ہے اس کا خیال نہیں کرتے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور پھر کہتے ہو اللہ ہماری عزت نہیں دنیا میں بننے دیتا۔ جو انسان یتیموں کے کام نہ آئے، جو انسان مسکینوں کے کام نہ آئے، اللہ کی رب کائنات کی قسم اللہ کبھی اس کی دنیا میں بھی عزت نہیں بناتا۔ یہ قانون یاد رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔
फरमाया सिर्फ माल दौलत इकट्ठे करके बैंकों में लेके उसको बैंकों में छोड़ के कब्रों में जाके घर तुमने बना लिया, और किसी के तो तुम काम नहीं आए, बैंकों के ही काम और फैक्ट्रियों के काम आते रहे, इंसानों के काम नहीं आए। इंसान तुम्हारी इज्जत किस वजह से करे? मैं तुमने इंसान तो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, अल्लाह भी क़यामत के दिन तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। जो गरीबों मिस्कीनों इनके काम, जो माड़े कमजोरों के काम नहीं आएगा, अल्लाह भी उसकी ना दुनिया में इज्जत बनने देगा ना आखिरत में, बर्बाद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी इज्जत को, जो कमजोरों के काम नहीं आता है। कुरान मजीद बार बार ये कह, इसमें सूरह बलद में अल्लाह पाक फरमाता है फलक्तहमल अक़बा वमा अदराक मल अक़बा फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। ऐसे अल्फाज अल्लाह पाक ने इख्तियार फरमाए हैं, ऐसे अल्फाज बयान किए हैं, और ऐसे अल्फाज का चुनाव अल्लाह ने कहा। मैं ओ इंसानों, एक बहुत बड़ी घाटी है आगे, एक जहां से तुमने गुजरना है। फलक तहमल अकबा, इंसानों उस घाटी से तुम क्यों नहीं गुजरते? ये काम करने वाले थे, काश तुम करते तो तुम उस घाटी से गुजर जाते। फलक तहमल अकबा वमा अदराक मल अकबा फक्कु रक़बा। और लोगों, दुनिया में कुछ काम करने वाले थे, ये करके मेरे पास आना, तब तुम उस घाटी को पार कर सकोगे। फक्कु रक़बा, और तुम किसी को देखो को फंसा हुआ है किसी जगह, उसको छुड़ा दो। नजायज किसी को फंसाया गया है, कोई जुल्म की चक्की में पिस रहा है, उसकी चक्की पर एक कर दो, उसको छुड़ा दो। कोई किसी आदमी ने गुलाम किसी का बन गया है, उसकी गुलामी जो है ये खत्म, और दुनिया में इंसानों की गुलामी की जंजीरों को काट के अल्लाह की गुलामी की जंजीर में इंसानों को परो दो। फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। और वो भूख के दिन एक इंसान भूखा ही जानता है कि एक भूख के दिन गुजरते कैसे रातें लंबी हो जाती हैं, दिन गुजरता नहीं एक गरीब आदमी का। ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों को बताओ, एक बड़ी घाटी से तुमने गुजरना है, और वो उसमें गुजरने के लिए एक ये है क्या? फक्कु रक़बा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा। फरमाया जब इंसानों में भूख चाहिए हो, उनकी भूख को खत्म किया करो क़यामत के दिन, और तुम्हारी भूख जो जन्नत की है वो हम पूरी कर देंगे, तो हम उसको मिटा दें। यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा। यतीमन मक़रबा, मतरबा का मतलब क्या है? मैं वो मिस्कीन जो खाक में रुल गया बेचारा। तो गरीब तो खाक में रुल जाता है। आपने अल्लाह की कसम ने देखे नहीं कभी उनके कपड़े ऐसे खाक आलूदा, ऐसे मुंह के ऊपर गर्द जमी हुई, ऐसे बालों के ऊपर गर्द जमी हुई, घर की कोई काम कोई है नहीं, मट्टी में रुल जाता है बेचारा, जिंदा ही जिंदा। है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों को सिखाओ कि ये जो मट्टी में रुल गए इंसान हैं, इनको उठाओ, इनको नहलवाओ, इनको कपड़े पहनवाओ, इनके पेट की आग को इनको बुझाओ, अगर क़यामत के दिन तुम जहन्नम की आग को बुझाना चाहते। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में 23 सूरतों में 20 और 3 23 सूरतों में इसका जिक्र किया। ऐ मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों को कहो कि इन कमजोरों के काम आया करें। तारीख में एक बड़ा अजीब वाकया लिखा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बारे में। मक्का में एक आदमी था, वो आया, बाहर से आदमी आया, आके उसने कोई मामला किया अबू जहल के साथ। अबू जहल के साथ मामला हो गया तो अबू जहल ने वो माल उसका ले लिया, कहने लगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। काफी देर गुजर गई, ये आदमी पैसे नहीं देता था, पैसे नहीं ये इंसान देता था, तो ये बार बार मक्का में आता, कोई पैसे देता ही नहीं था। यहां तक कि ये मक्का के बड़े सरदारों के पास गया, उनको कहने लगा मेरी बात सुनो, ये मेरे पैसे मार गया है, कोई देता ही नहीं। कहने लगे ना ना किसकी बात करते हो, ये इसका नाम लिया, ये अबू जहल, ये अमर बिन हिशाम का इसका असल नाम था, वो उसको कौन कह सकता है। सारे ही सरदारों ने जवाब दे दिया कि हम नहीं आ सके।
बेचारा पूरे मक्के का उसने दौरा लगाया, कोई इसकी बात ही नहीं सुनता था, और कोई इतना ही जाके कह दे इसके पैसे तो भाई दे दो तुम। ये बेचारा आके थक हार के अल्लाह के घर में आके बैठ गया, परेशान हो गया कि मेरी अब बात ही कोई नहीं सुनता है। अचानक वो जो शरारती किस्म के कुरैशी सरदार थे मुशरिकीन के, इनको एक शरारत सूझी। इन्होंने कहा कि इस तरह करो, इसको बुलाओ जरा, ये पैसे लेने वाले को। कहने लगे अभी यहाँ एक ऐसा काम करते हैं, इसको कहते हैं कि तुम वो जो बंदा अभी यहाँ एक आएगा हरम में, इस तरीके से वो इबादत करेगा, तुम उसको जाके कहो। तो उनको ये पता था, उन्होंने बुलाया और कहने लगे यहाँ एक बंदा आएगा, अभी देखना, तुम उसके पास जाओ, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको यकीन था कि जब ये बंदा उनके पास जाएगा मोहम्मद साथ चला जाएगा, इनकार नहीं करेगा, तो गरीबों मस्कीनों के काम आने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप थोड़ी देर बाद हरम में आए, तो ये बंदा सीधा ही नबी अलैहिस्सलाम के पास गया और जाके कहने लगा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल ने मेरा इतना इतना कर्ज है, ये उसने वापस नहीं करता। मैं मक्का के सारे सरदारों को मैंने कहा है, मेरी को बात सुनता ही नहीं। आखिर पे लोगों ने मुझे बताया है कि आपको अगर कहा जाए, उनका ख्याल ये था कि अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये आदमी जाएगा। अबू जहल तो गुस्से वाला ही बड़ा है, उसने तो फिर ये और ये और ये पता नहीं ऐसे कर देना, अभी देखते हैं ये क्या हशर करता है, नऊजुबिल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई गई कि कहने लगा मेरे साथ कोई नहीं चलता है, मेरी कोई सुनता नहीं है। मैं अच्छा, कोई तेरी नहीं सुनता, आप इबादत करने आए थे अल्लाह के घर में, आपने इबादत को छोड़ दिया। मैं चलो मैं मोहम्मद तुम्हारे साथ चलता हूं, कोई नहीं चलता मैं जाऊंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ चले और अबू जहल का जो घर था आप उस तरफ आप रवाना हो गए। मक्का के मुशरिक भी पीछे पीछे आगे के देखते हैं अब क्या बनता क्या है, अब तो बड़ा कुछ होना है, ये उसको को कह सकता है। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे के ऊपर गए, अबू जहल के, आपने दरवाजे को नॉक किया, खटखटाया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि अबू जहल ही घर से बाहर निकल आया खुद, ऐसे उसने दरवाजा खोला, सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बंदा साथ खड़ा था, वो जिसके पैसे उसने देने थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर बिन हिशाम, अबू जहल का नाम, ए अमर बिन हिशाम, इस गरीब आदमी के पैसे तुमने लिए हैं, इतनी देर हो गई है, ये कहता है कोई तू देता है, क्यों इसके पैसे नहीं देता, अभी इसके पैसे वापस करो। अब कौन जुर्रत कर सकता था अबू जहल के साथ इस किस्म। अचानक अबू जहल ने ऐसे देखा तो अबू जहल के ना ये कानों में जब ये आवाज आई और नबी अलैहिस्सलाम का वो आपके अल्फाज जब उसके कानों में पड़े, उसी वक्त क्या जी 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 करने लगा और क्या मैं आया मैं और अंदर गया, जाके पैसे उसने लाके नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो आदमी जो था उसके सुपुर्द कर। नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गए। बाद में अबू जहल के दोस्तों ने पूछा, अरे तेरे घर में आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया था, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ, और अजीब बात है उसने जाके तुम्हें हुक्म दिया है, वो तुम सरदार और उसने हुक्म दिया है कि अभी उसके पैसे दो, और तुम्हें जी जी कर रहे थे, क्या हो गया तुम्हें? कहने लगा अल्लाह की कसम, मैंने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे एक बहुत बड़ा ऊंट था और ऊंट ने अपना सारे का सारा मुंह खोला हुआ था, मुझे ऐसे शक था कि मैंने ना किया नहीं, ऊंट ने सारे का सारा मुझे हड़प कर दिया। मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके काम आते थे जिनके अहले मक्का जिनको जुटला दिया करते थे, दुरकार दिया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने सीने से लगाया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बदर हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से गज़वा बदर में ये डंडे सोटे वाले मक्का के बड़े 1000 लश्कर, ज़िराबंद तलवारें, ऊंट, तीर, पर्चियां, खंजर, पता नहीं क्या क्या उनका लश्कर था, और इधर नबी अलैहिस्सलाम के साथ 313
और वो भी डंडे सोटे और 2-3 तलवारें 6 तलवारें और चंद, ये उनके साथ लड़ाई इनकी। अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने कमजोर थे, लेकिन देखो तुम्हें फतह जो हो गई है, पता क्यों हुई है? और फतह और नुसरत तो अल्लाह के हाथ में है, इंसानों के हाथ में है। आपने देखा नहीं आपकी जिंदगी में कल ये दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, ये अमेरिका के मुकाबले नहीं, अमेरिका से बड़ी थी रशिया। यहां दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर और कहता था उसने अफगानिस्तान में आया जी, ये एक ऐसा रीच है, जिस जगह जिस मुल्क में ये अपना पंजा रख देता है, अब ये वापस नहीं करता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुजाहिदीन, वो आम चलने फिरने वाले, ये राइफलें उठाने वाले, ये छोटे छोटे पिस्टल उठाने वाले, अल्लाह जिनकी मदद करे और उनको कौन हरा सकता है? ये इस रीछ ने जो अपने हाथ आगे किया, पंजा किया था, अल्लाह के फजल से उसने उन छोटे छोटे मुजाहिदों ने, गरीबों ने उस पंजे को ही काट दिया। और फिर ऐसा हुआ कि रूस का अपना यह हाल हुआ कि उसके अपने मुल्क के 8 हिस्से हो गए, 7 अलग हो गए उसके। फतह नुसरत तो मदद तो अल्लाह के पास है, ये इंसानों के पास है। अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सोटियां, ये डांगे लेके जो आप आए थे तीरों तलवारों और नेजों और जिरों के मुकाबले में, 1000 का लश्कर उनका, आप 313, ये जो आपको फतह हुई है ये अल्लाह ने दी है, अल्लाह के हाथ में है नुसरत और फतह जो है। अल्लाह का करना हुआ, उनके 70 बड़े बड़े सरदार तो जंग में मारे गए और 70 उनके जो थे ना दीगर बड़े बड़े लोग जो थे वो हक्का बक्का हो गए, मुसलमानों ने उनको कैद करके मदीना में ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अपने ही तो रिश्तेदार थे, कई इनमें नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार थे। इनको जब कैदियों को बांध के फरमाया इनको लेके आओ जरा, मदीना में इनको लेके आए। रात का वक्त हुआ, किसी रस्सी को जो बांधने वाला आदमी था ना, उसने रस्सी बड़े टाइट करके जोर के साथ हाथों और पांवों को बांध दिया था कि ये भाग ना जाए। और तो कोई जगह ही नहीं थी, यही एक तरीका था गुर्बत की, गुर्बत ही गुर्बत थी सारी। ज्यादा जोर करके रस्सियों को बांध दिया और उनमें जो कैदी थे उनमें नबी अलैहिस्सलाम का सगा चचा हजरत अब्बास भी थे रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये भी उन्हीं की तरफ से, अबू जहल की पार्टी की तरफ से आए थे। ये लड़े नहीं, ये पीछे पीछे ही खड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुआ ये कि मुसलमानों ने इनको भी गिरफ्तार करके ये ले आए। अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कैदियों को बड़े जोर से रस्सियों से बांधा गया था, जकड़ा गया था, भाग ना जाए, सुबह इनसे बात करेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका घर करीब ही था, आप घर से कभी बाहर आए, थोड़ी देर बाद आप फिर अंदर चले गए, आप फिर बाहर आए, आप फिर अंदर चले। कई दफा ऐसे हुआ, एक आदमी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है आप सोते क्यों नहीं हैं? पर मैं कैसे सोऊं? पर मैं वो 70 इंसान इतने जोर से घुट के बांधे हुए हैं, वो बेचारे करा रहे हैं, मोहम्मद कैसे सो सकता है? दुश्मन थे, दुश्मन बंधे हुए थे, दुश्मन करा रहे थे, रस्सियों के इतने जोर से बंधे। पर मैं मोहम्मद को नींद नहीं आती जब इंसान रो रहा हो, जब इंसान जो है ये परेशान हाल हो, तो मोहम्मद सो नहीं सकता है। आदमी गया, उसने जाके उसने समझा शायद नबी अलैहिस्सलाम का चचा जो है ये उसके कराने और उसके रोने की आवाज है, इस वजह से आपका रिश्तेदार है, शायद सगा चचा है, उसकी वजह से ऐसा है। जाके रस्सी को ढीला कर दिया ताकि वो हजरत अब्बास जो थे ये सुकून से आ गए। वो वापस आया, कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके चचा अब्बास को बिल्कुल ढीला कर दिया, अब तो उनकी रस्सी ऐसी नहीं है। फरमाया तुम अब्बास कहले की बात ना करो, इस रुए जमीन पूरी में जिस जगह भी कोई इंसान रोएगा कराहेगा, उसकी तकलीफ मोहम्मद को होगी। मोहम्मद चाहता है इंसानों की तकलीफें खत्म हो जाए। इंसान किस तरीके से गुलामी के पंजे में जकड़ा हुआ होता है,
इसकी तकलीफ जो है ये मोहम्मद से बर्दाश्त नहीं। मैं सबको जाकर ढीला करके आया, सबको ढीला कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम फिर सुकून से सो गए। आप कैसे मुमकिन है कि इंसान परेशान हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना में थे, मदीना में एक दिन बैठे हुए थे, एक छोटी सी बच्ची आई। ये बच्ची किसी की घर की लौंडी बच्ची थी। कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची को दे गया कि जाओ इससे काम लेना। जिस तरह हमारे यहां भी आजकल हमारे घरों में अमीर आदमी, जालिम अमीर आदमी, वो गरीबों के बच्चे हमारे घरों में बच्चियां काम करते हैं सारा दिन, सर्दियों में गर्मियों में, दिन से लेके अजानों के वक्त। कई वक्त दफा मैं नमाज के लिए सुबह निकलता, उस वक्त गरीबों के बच्चों को बाहर दूध और फलां और नाश्ता के लिए भेजा, नंगे पांव उनका इतना ज्यादा काम लिया। रात के आजकल 10-10 बजे वो छोटे छोटे गरीबों के बच्चे और बच्चियां काम कर अपने बच्चे रेशमी और मखमल के लिहाफों में सोए होते। इतना जुल्म करते, इंसान ही नहीं समझा जाता उनको। गधों से ज्यादा काम लिया जाता है उन मासूम बच्चों और बच्चियों को, और कहा जाता है छोटा बच्चा लेके आना, ये थकता नहीं, काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम उनसे लिया जाता। ये मदीना में एक बच्ची थी किसी की, ऐसे ही कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची दे गया था किसी को, यही कोई मामला होगा, उसके घरों में वो काम करती थी। एक दिन उन्होंने उसको बहुत काम कह दिया, तुमने ये भी करना है, ये भी करना और ये भी करना है। हमारे यहां भी जिस तरह अमीर आदमी ऐसे ही कहते हैं गरीबों को, ऐ पुत्र सारे घर का झाड़ू सफाई दे के, परोली फेर के, भांडे मांज के, सब्जी ले आके ना, और उसके बाद बर्तन धो के थे वो ना जरा ना कपड़े धो के ना फिर पांचते इस्त्री जरा कर दें। एक साल में 300 उसको काम कह देते हैं। वो 10 बंदों का काम कल्ले कल्ले इंसानों से, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। क़यामत के दिन इस ज्यादती को तोला जाएगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये याद रखना, मजलूम ये जो लोग हैं इनकी मजलूमियत को तोला जाएगा जो उनके साथ हुई है, और तेरे अमाल को भी तोला जाएगा। फरमाया अगर क़यामत के दिन इनकी मजलूमियत बढ़ गई तो तुझे जहन्नम में भेजा जाएगा। हम समझते हैं ये बच्चा जितना मर्जी है इससे नंगे पांव, नंगा इसका सार है, इसको कौन सी सर्दी लगती है। मेरे बच्चे तो 100 स्वेटर पहन के, कई जुराबें और जस्सियां और फलां और दस्ता, मेरे बच्चों को ठंडक लगती है, इसको नहीं लगती ठंडक। ये जुल्म और ज्यादती की दास्तानें आज भी दोहराई जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बच्ची आई, कहने लगी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्ची को अभी इतना अदब अदाब का नहीं पता था, लेकिन कुछ आपके बारे में पता था उसको कि आपकी आदतें कैसी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके कहने लगी, आज मैं जिनके घर में काम करती हूं उन्होंने मुझे बड़ा ही काम कह दिया, मुझसे काम नहीं होता, आप मेरे साथ है, थोड़ा सा काम करवा दें। उसको पता था कि ये बंदा ऐसा, इसको काम कहा गया तो इसने ना नहीं करना है। और फिर बच्चियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे और जंगें लड़ चुके थे कई। आप उसी वक्त उस यतीम, वो एक बच्ची जो काम करने वाली थी, मोहम्मद उनके साथ चले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा लो बच्चे क्या काम है, मैं कर देता हूं, क्यों उनसी चीज नहीं उठाई जाती, मैं मोहम्मद उठा लेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी बात का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में, ये जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है, अल्लाह पाक ने ये बात, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, वो लोगों हमने अपना एक ऐसा नबी रसूल मोहम्मद तुम में भेज दिया, तुम्हारी नस्ल का इंसान है, ये एक ऐसा भेजा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया तुम्हें जरा भी तकलीफ होती है, और शायद इसका तर्जुमा ये है, और इंसानों और तुम्हारे पांव में तकलीफ होती है, एक कांटा चुभता है तब तकलीफ उसकी मोहम्मद के दिल पे होती। हमने ऐसा अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, फरमाया वो नबी यही चाहता है इंसानों तुम्हारा भला ज्यादा से ज्यादा। मैं कहा बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम, फरमाया और अगर मोमिन हो तो उसके साथ तो फिर और ही ज्यादा ही है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस वक्त मदीना में आए थे, 2-3 जंगें हो चुकी थी, ग़ज़वा बदर भी हो चुकी थी, ओहद भी हो चुकी थी, और उसके बाद ये ग़ज़वा अहज़ाब ये भी हो चुकी थी जिसे खंदक कहते हैं। तीनों जंगें हो चुकी थी, बड़ा बड़ा नुकसान दोनों तरफ से हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम के चचा हजरत हमजा भी
कई और भी मुसलमान यतीम बच्चे बच्चियां हुई थी। उन्हीं दिनों चूंकि मक्का के लोग बार बार आते थे, बार बार आते थे, जान ही नहीं छोड़ते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पहले बदर की तरह बदर की मकाम पे आए, मक्का से चल के मदीना के पास आए, फिर मक्का से चल के उहद, ये मदीना के पास आए, फिर मक्का से चल के ये खंदक, फिर नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों को पीछा छोड़ते ही नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम, याद रखे लोगों, अहले ईमान के हथियार तो कुछ तो वो हथियार हैं, कुछ तो हथियार तो वो जारी हैं, ये तीर तलवार, ये गोली, ये वगैरह हैं। एक अहले ईमान का हथियार है कि अहले ईमान सारे दुनियावी तौर पर हथियार इकट्ठे करने के बाद फिर अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कर लेते हैं। अल्लाह मैं कमजोर हूं, अल्लाह तू हमारी मदद, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क तू ही कर, या इनको हिदायत दे। ये अहले ईमान का, याद रखें, ये बद्दुआ जो है, ये बद्दुआ अहले ईमान का हथियार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन हालात को देखा, मेरा पीछे ही नहीं छोड़ते, आपने फिर अल्लाह से कहा, या अल्लाह इनको तू ही निपट ले, मैं क्या करूं, मुझे आराम से रहने ही नहीं देते हैं। अल्लाह ने उनके मक्का में अल्लाह ने कहत को नाज़िल कर दिया। मक्का में इतना कहत हो गया, इतना कहत हो गया, और मक्का में जिस इलाके से माल दौलत उनका वो गंदम, ये मकई, जौ वगैरह, ये अनाज आता था ना, खजूरें, ये आती थी यमामा से। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि यमामा का सरदार मुसलमान हो गया था, उसने इनका राशन बंद कर दिया, इक्तसादी पाबंदियां लगा दी, बस जी खबरदार इनको को दाना भी नहीं देना, इसलिए कि ये हमारे नबी को तंग करते हैं। मक्का वालों का ये हाल हो गया कि इनके पुराने जानवरों की जो हड्डियां पड़ी होती थी, उनको लेके पीस के पानी डाल के जमजम का, उन हड्डियों को खाने पे मजबूर हो गए। एक दिन अबू सुफियान, इतनी लड़ाइयां हो चुकी थी, ये मक्के का सरदार वहां से चला और मदीना आ गया, कहने लगा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे लड़ते रहे हैं, लेकिन है तो हम अपने ही है ना, आपके अपने ही हैं। अब याद आया अपने, जब मक्का से निकाला था उस वक्त अपना याद नहीं आया। जब बदर में लड़ने आए थे, जब इनके चचा के गोश्त को टुकड़े काटे गए थे, उनका सीना उनका काटा, उनका दिल निकाला, उस वक्त याद नहीं आया, ये मोहम्मद भी मेरा हमारा लगता कुछ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके कुछ लगते ही हैं। ये हालात हो गए हैं, हम ऐसे हड्डियां पुरानी जो है, जो उनको चूसने और रगड़ के खाने पे मजबूर हो गए हैं। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह कहत को खत्म कर दे। वो आपका यमामा से जो आपका ना एक मानने वाला उम्मती है, उस इलाके से माल आता था, उसने माल रोक लिया है। या रसूल अल्लाह, उसने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इक्तसादी पाबंदियां उसने लगा दी हैं। और याद रखो लोगों, इस बात को समझ लो आज, और मैं रब की कसम उठा के कहता हूं, किसी भी मुल्क के ऊपर चागरचे वो काफर क्यों ना हो, इक्तसादी पाबंदियां लगाना जो है, ये हराम है, गुनाह कबीरा है जी। आप नहीं लगा सकते, आप उनके रब हैं कि उनका खाना रोकते हैं, उनका पीना नहीं। अगर वो मानता तो वो ना माने, अल्लाह ने तो कम से कम क़यामत के दिन पूछना नहीं उससे, और क़यामत का दिन भी तो आना ही है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, फरमाया उसने खाना तो रोक लिया, फौरी तौर पे उसको लिखा, फरमाया बेशक ये कोई भी हैं, लेकिन मोहम्मद ये नहीं चाहता कि लोग रात को भूखे सोएं, उनके बच्चे रोएं, मोहम्मद नहीं चाहता, उनकी बच्चियां भूखी सो जाएं, मोहम्मद नहीं चाहता है। इनका जो राशन है फौरी तौर पे उसको बहाल करो और इनको खत्म करो, इनका ये जो बाइकाट किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी को फौरन बांट लिया करते थे। आप इंसानियत का दुख जब होता है, फौरी तौर पर उसको बांटा कर आप शरीक हो जाया करते थे। एक आदमी मुसलमान हो गया तो कुछ दिनों बाद कहने लगा, मैं आपको, या शायद उसी वक्त, उससे बातों में एक तफसीर है मवाहिबुर रहमान, उसमें यह वाकया लिखा है। वो आदमी कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको एक अपना वाकया सुनाऊं, मैं मुसलमान तो हो गया हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी एक मुसीबत है, मुझे परेशानी है। क्या? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता ही है कि अरब के लोग जो थे, बड़े लोग अपनी बच्चियों को पैदा होते ही मार दिया करते थे। अल्लाह ने मेरे घर में भी उम्मीद लगाई हुई थी, अचानक मुझे काम पड़ गया, मैं अपनी बीवी को कह के गया
कि अगर बच्ची हुई तो उसको कत्ल कर देना, खत्म कर देना, बच्चा हुआ तो जिंदा रहने देना। मैं काम पे चला गया तो मैं कितने साल ही काम पे वहीं गया, कितने सालों बाद आया, घर में आया तो मैंने देखा मेरी बीवी थी और एक बच्ची थी, वो भागने दौड़ने वाली बच्ची थी, बड़ी बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, मेरे साथ मानूस होगी, मेरी झोली में बैठ, मेरे साथ गले में बाहें डाल के मेरे साथ प्यार मोहब्बत के। अब मेरा तो ये हाल हो गया कि मैं उसके बगैर खाना नहीं खा। मैंने अपनी बीवी से पूछा ये बच्ची है कौन? कहने लगी कि ये मेरी बहन की या कोई और, उसने बता दिया उसकी बेटी है, तेरी बेटी हुई थी, मैंने उसको खत्म कर दिया था। कहने लगा शुक्र है, उस मेरी तो नहीं ना है। या रसूल अल्लाह, ये जो बच्ची थी ना, घर में चलती फिरती खेलती कूदती, बड़ा ही मेरे साथ, मैं खाना नहीं खाया करता था उसके बगैर, बड़े लाड किया करती थी, मेरे गले में अपनी बाहों को डाल के हार बनाया करती थी। या रसूल अल्लाह, एक दिन मेरी बीवी ने देखा कि अब ये इसके बगैर नहीं रह सकता, उसने कह दिया ये जिसके बगैर नहीं ना तुम रह सकते, ये तेरी वो बेटी हुई थी, ये वो है। मैं फौरी तौर पे मैं ऐसे संग दिल हो गया, और मेरी बेटी अभी दुनिया में जिंदा है। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने उसको पकड़ के मैं उसको जंगल में ले गया, मेरे पीछे पीछे वो भागती थी, कभी आगे कभी पीछे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने एक जगह गड़ा खोदा, ये मैं गड़ा खोद रहा था और वो पास खेल रही थी, कभी इधर जाती कभी उधर जाती। अचानक गड़ा मैंने काफी गहरा खोद लिया, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा इधर आओ, भागी आई, मेरे अबू ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उसको पकड़ा, मैंने उस गड़े में धक्का दे दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैं दे दिया मुझे अबू अबू कहने लगी, फिर ये हाल हो गया, मैंने मिट्टी उसके ऊपर डालना शुरू की और मैं मिट्टी डालता गया, वो अबू अबू कहती रही, अबू अबू कहती, मिट्टी डालता गया, उसकी आवाज मिट्टी में दब गई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज भी रात को सोता हूं, मुझे सोना नींद नहीं आती, आवाज आती है मेरे अबू, वो आवाज आती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब किसी की परेशानी और दुख को सुन सकते? आपने जब ये सुना, आपका ये हाल हो गया, आपकी दाढ़ी मुबारक जो थी ये आंसुओं से तारों के आंसू जमीन के ऊपर गिर पड़े। सारा वाकया सुना और मैं फिर सुना बच्ची ने क्या कहा, फिर उसने सुनाई, जब दोबारा मैं फिर सुना उस बच्ची ने क्या कहा तुझे, कहती थी अबू मेरे मुंह में मिट्टी जा रही, मेरे सर में मिट्टी जा, मैं अबू मुझे बचाओ, अबू अबू कहती रही, मैंने उसकी आवाज को मिट्टी में दबा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कैसे इंसानियत का दुख देख सकते हैं? और कुरान मजीद ने फिर यही बात कही, बार बार कुरान मजीद में इन बच्चियों का जिक्र हुआ, फरमाया ऐसे मुंह न काला कर लिया करो, अल्लाह औलाद भी देता है, औलाद बच्ची जो है, ये बच्ची है, ये बच्चा है, इसको पैदा करने वाला इसका रब अल्लाह है, तुम नहीं, और तुम्हारा कोई कसूर नहीं, अल्लाह है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। ए लोगों, जमीन और आसमान की सारी की सारी बादशाही अल्लाह की है, जो चाहे क्या था। हजरत अनस, ये आपका ये आया घर में, या कोई दूर का रिश्ते था, बच्चा छोटा था, घर में आया, उसने देखा नबी अलैहिस्सलाम तहज्जुद के लिए खड़े हुए हैं। आप लंबी नमाज पढ़ा करते थे तहज्जुद की, सबहन तवीला, लंबी लंबी, तरतील कुरान तरतीला, आप बड़ी लंबी आपने देखा बच्चा है, मैंने लंबी किरात करनी है, बच्चा थक जाएगा, आपने छोटी छोटी सूरतें पढ़ के सारी तहज्जुद खत्म कर। अब किसी बच्चे को भी तकलीफ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं दिया कर। हज़रात,
ये जो मेराज के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम को 50 नमाजें दी हैं और आप चुप करके वापस आ गए, आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि आपकी उम्मत से पढ़ी नहीं जाएंगी, वापस जाएं, ये जो वापस गए थे नबी अलैहिस्सलाम किसके लिए गए? अपने लिए नहीं गए थे। और नबी अलैहिस्सलाम तो 50 नमाजें लेके राजी राजी आए थे। उम्मत का ख्याल हुआ तो उम्मत के लिए मोहम्मद ने 9 फेरे आसमान किए। मेरी उम्मत को तकलीफ ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तकलीफें जो दुनिया की हैं इनको खत्म करने के लिए क़यामत के दिन खुद कुरान अहादीस में आता, बेशुमार अहादीस में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया क़यामत के दिन सारी इंसानियत जो है ये आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी और सारे नबियों से होती जाएगी। हर नबी यही कहेगा, नफ्सी, आज मुझे तो अपनी जान की पड़ी हुई है, अल्लाह ने पता नहीं मेरे साथ कैसा मामला कर, क्या अभी मामला हो जाना है। लस्तु हुनाकुम, मैं अल्लाह के सामने नहीं जा सकता, उसके अर्श के सामने। पर मैं सारे नबी जवाब दे देंगे, फिर उसके बाद सबसे आखिर में मेरे पास आएंगे, सारे नबी भी जवाब दे देंगे, मैं मोहम्मद के पास आऊंगा। मैं कहूंगा चलो मैं चलता हूं, सलाम हो मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे, अल्लाह की रहमतें हो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात-ए अक़दस के ऊपर, अल्लाह की रहमतों की बारिश हो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर। ऐ अल्लाह, जमीन और समान में जितने भी हवाओं के ज़र्रात हैं, रेत के ज़र्रात हैं, मिट्टी के ज़र्रात हैं, अल्लाह उनसे ज्यादा, ऐ अल्लाह जितने पानी के कतरे बनते हैं उनसे ज्यादा, दरख्तों के जितने पत्ते हैं उनसे ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात पे रहमतों को नाज़िल फरमा। ये नबी है, ये मिशन है मोहम्मद रसूलुल्लाह का। और काश कोई जश्न मनाने वाला मिशन भी कहे कि मैं इंसानों के गुनाह, ये जो परेशान हाल हैं और इनकी मैं सुनता हूं, और सारे जश्न जश्न ही करते रहे, और मिशन किसने करना है? नबी तो एक मिशन लेके आया। अल्लाह हमें मिशन जो है रसूलुल्लाह का उसे पूरा करने की तौफीक, हम भी इंसानों के काम आ जाएं। और लोगों याद रखो, दुनिया में एक फेरा है, जितने लोगों के काम आ सकते हो आ लो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।